Okay, so now I have started recording as well. So we were discussing the design of NFA on last lecture, and we have discussed the design of NFA through these 3-4 examples, and we have concluded that NFAs are much easier to design in comparison to DFAs, and they are more close to the regular expressions. So regular expression is a better understanding about the language. Okay, so we can understand the language better in form of the regular expression. So they directly conforms to what we are designing in the regular expression. So now we are taking the next example, that is example 4. This example says we have to design an NFA that accepts all strings starting with A. So accept all, just one, all strings starting with A. अब तक आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो चुकी है. आई विश दैट अगर आप लोग कॉपी पेन साथ लेकर के बैठे हों तो आप लोग भी साथ साथ डिज़ाइन करते चलिए, एंड जो कुछ भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उससे कंपेयर करते चलिए. कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप जो है उसको पूछते चलिए, तो इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. विद ए, so accept all strings starting with A. What will be its regular expression? Simply A plus B asterisk. So this will be the regular expression. अगर मुझे इसका NFA डिजाइन करना है, सिंपली सक्सेस के लिए क्या चाहिए? A. ओके, एक सक्सेस के लिए मेरे को क्या चाहिए? A चाहिए. सो मुझे शुरू में A चाहिए था तो A मिल गया, एंड A will give me the success. और इसके बाद कुछ भी आए, anything. So I will not leave the success. So this will be simply the design of NFA corresponding to this particular language. अगर इसी का DFA देखते हैं तो DFA ऑलरेडी हम बना चुके हैं. अगेन यू लुक, स्टार्ट, A will lead you to the success, and once you are there you are not going to leave it. Okay, but in case of DFA you also have to complete all the transitions. In NFA you are required to draw only the necessary transitions, while in DFA you have to complete all the transitions. Okay, so let us look at this state. For A there is a transition, but for B there is no transition. So in the start state, if we have a B, so we will go to a fail state. Why? Because my word has started with B, which is not allowed. For success, my word should start with an A. So on B, I will be moving away from the success path and I will move to the failure state, because once my word has started with B, it can never start with A. Okay, so I can never reach to success. So this is the design of DFA. Again, you can see that this design of DFA is quite different from the regular expression or from the understanding of the language, while this NFA design is fully conforming with the regular expression. Is it clear? Some of you have made this NFA at your own class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are moving further. Next example, 2-3 more examples I will be taking. Actually, I want to show you a specific example. So I will be reaching to that example in a sequence. So now example 5. NFA that accepts all strings starting with A and ending with B. अब बनाना शुरू करिए. Accept all strings starting with A and ending with B. So the regular expression will be A plus B asterisk B. A से start हो, B से end हो, बीच में कुछ भी आए. Simply you will make an NFA. Start A चाहिए शुरुआत में, B चाहिए आखिर में, और अगर लास्ट लेटर B है
तो सक्सेस और बी के बाद कुछ नहीं चाहिए तो आगे कुछ नहीं बनाया, बट ए और बी के बीच में कुछ भी आ सकता है, पहले ए और लास्ट बी के बीच में एनीथिंग कैन कम. So there is a self proof of AB. So this is the NFA corresponding to this particular problem. Again, if you make a DFA corresponding to it, एक बार बना लीजिए DFA भी. Start state. Start state. For success you need an A in the starting and then B in the last. Then it is the success. अगर A से start हुआ तो ठीक है, success path पे आगे बढ़े. अगर A से start नहीं हुआ तो B, तो B से start हुआ तो ये आपका fail हो जाएगा. Is it? क्योंकि कभी भी starting फिर A से नहीं हो सकती, starting A से चाहिए. So on B you will be moving to a fail state. Is it? Suppose you are on the success path, your word has started with an A. Then if a B comes, then you will reach to the success. But if B doesn't come, A comes. So what you will do, you will stay here. You will wait until B doesn't come. क्योंकि अगर A मिल रहा है और यहीं पे एंड होता है तो आप एक नॉन फाइनल स्टेट में एंड करेंगे और आपका वर्ड रिजेक्ट हो जाएगा. बट अभी B मिलने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक B मिले और आप फाइनल सक्सेस पे पहुंच जाए. सो दैट्स व्हाई यू विल वेट हियर जब तक कि आपको A मिलता है. जैसे ही B मिला वैसे ही आप सक्सेस पे पहुंच गए. अब सक्सेस पे पहुंच गए, यहीं पे स्ट्रिंग एंड हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ या तो A मिलेगा या B मिलेगा. अगर B मिलता रहता है तो आप यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि अगर इस B पे एंड हो जाता है तब भी आपका वर्ड किससे एंड करेगा, B से एंड करेगा. सो ऑन B यू विल स्टे एट दी फाइनल स्टेट. बट अगर आपको B नहीं मिल करके A मिलता है तो आपको फाइनल स्टेट से हटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका स्ट्रिंग खत्म हो गया, एंड हो गया तो A से एंड होगा. बट स्टिल अभी भी आपके पास संभावना इस A के बाद अगला B आ जाए, तो जहां से एक B लेकर के आप सक्सेस पे वापस आ सकते हैं उस स्टेट पे आपको मूव करना होगा. सो ऑन A यू विल बी मूविंग बैक टू द प्रीवियस स्टेट, जहां से एक B लेकर के आप वापस इस फाइनल स्टेट पे आ सकते हैं. तो आप देखिए, आपने सारे के सारे ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिए. A B पहली स्टेट का, दूसरी स्टेट का A भी है, B भी है, फाइनल स्टेट का B है और A है, और ये फेल स्टेट है, इसका A और B दोनों ट्रांजिशंस हैं. तो आपका DFA कंप्लीट हो गया. अब हाउ डिफरेंट दिस डिजाइन इज, ओके, एंड हाउ सिंपल दिस NFA इज. अगेन आई एम रीआइटरेटिंग all those advantages of NFA. Just I want to show you that how NFA, how designing an NFA can be useful to you. Then next example, example 6. Accept only one word BAA. ओके, इसका DFA हम ऑलरेडी बना चुके हैं. इसका NFA बनाना है. इसका DFA हमने बनाया था कैसे, सक्सेस पाथ से B A एंड A. अगर इस सीक्वेंस में मेरे को लेटर मिलता है देन इट इज द सक्सेस. एवरीथिंग एल्स विल गो टू द फेल स्टेट. I have made a fail state. अगर मेरा B से स्टार्ट हुआ तो ठीक है, अगर B से नहीं स्टार्ट हुआ, A से स्टार्ट हुआ, देन इट इज ए फेल्योर. अगर सेकंड लेटर A हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर सेकंड लेटर B हुआ तो इट इज ए फेल्योर. अगर थर्ड लेटर A हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर थर्ड लेटर B हुआ तो इट इज ए फेल्योर. अगर सक्सेस पे पहुंच गए, BAA मिल गया, यहीं पे फिनिश हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, आगे कुछ भी मिला, चाहे A या B, तो ये फेल्योर. तो ये मेरा क्या था, DFA था. अब मुझे क्या बनाना है, इसका NFA. तो NFA मुझे क्या बनाना है, सिंपल सक्सेस पाथ फॉलो करूंगा. स्टार्ट स्टेट क्या चाहिए, एक B चाहिए, उसके बाद एक A चाहिए, उसके बाद एक A चाहिए, and it is the success. Only this thing you have to make, nothing else you have to make. So this again I am iterating. In NFA you need to draw only the necessary transitions. You only have to see the success scenarios. आपको सक्सेस के अलावा क्या होगा वो नहीं देखना. देखिए DFA में आपको सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी है. NFA में केवल आपको ये देखना है कि सक्सेस कैसे मिलेगी, सक्सेस के लिए क्या चाहिए. जो सक्सेस के लिए चाहिए केवल वही ड्रॉ करना है, उसके अलावा कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है. तो जो केवल नेसेसरी ट्रांजिशन है जिनसे लैंग्वेज मेरी पूरी हो जाती है वो मुझे बनाने हैं. फेल स्टेट में क्या हो गया, फेल्योर के केस में क्या होगा, वो सब कुछ बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है. सो दैट्स व्हाई द डिजाइन ऑफ NFA इज सिंपल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 7. This I wish that you make yourself. All strings
all strings ending with A. All strings ending with A. All string ending with A. Is it? तो ये NFA इसका आपको बनाना, तो बनाना शुरू करिए। इसका NFA कैसे बनाएंगे? ऑल स्ट्रिंग एंडिंग विद A। कैसे बनेगा? A plus B asterisk A. So this will be the regular expression. Okay, no, sorry. I have this we have already discussed. Problem is somewhat different. Just all strings not ending with A, all strings having odd number of A's. Okay. All strings having odd number of A's. Odd number of A's. Is it? So regular expression भी नहीं होगी ये, regular expression भी different होगी। regular expression क्या होगी? odd number of A's चाहिए मेरे को, तो एक A मेरा आ सकता है और A के क्लम्सेस में आ सकता है, और जितने भी A's हैं उनके बीच में मेरे क्या आ सकते हैं? B's आ सकते हैं। ओके, so it is B asterisk, it is B asterisk. Similarly, I will write B asterisk here, here, and here in these three places. So my regular expression will be somewhat B star A, B star in bracket, B star A, B star A, B star, its whole star, like this. So मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे जो है नंबर ऑफ एज मेरे को और रखने हैं, तो इसकी अच्छी खासी कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन भी है। तो अब इसका अगर आप डिजाइन करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, पहला ए आपका ऑड बनाएगा तो आपको कहाँ ले जाएगा? सक्सेस पे। लेकिन जैसे ही दूसरा ए आएगा वो वापस क्या बना देगा? नंबर ऑफ एज को इवन, तो वो कहाँ ले जाएगा? वापस ले जाएगा आपको। इज इट? सो एज पे तो बन गया। लेकिन अब अगर इसमें आप बीज के ट्रांजिशन ना बनाए, आपके सक्सेस के लिए केवल इतना ही काफ़ी है, जितना भी जब भी ऑड नंबर ऑफ ए होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर इन एज के बीच में बीज आ गए तो क्या वो इस स्ट्रिंग पे एक्सेप्ट होंगे? मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग बी ए है सपोज, सो मेरा स्ट्रिंग देखिए यहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ये एक्सेप्ट होना चाहिए क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ एज है, 1 ए है। तो स्टार्टिंग से मैं शुरू करूँगा, चूंकि स्टार्टिंग पे केवल ए का ट्रांजिशन है, बी का ट्रांजिशन है ही नहीं, तो मेरा स्ट्रिंग पहला लेटर रीड करते ही क्या हो जाएगा? इनपुट क्रैश हो जाएगा, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, यानी बी ए विल बी रिजेक्टेड ओवर दिस पर्टिकुलर एफ ए। तो यानी कि बी का ट्रांजिशन जो है वो बनाना नेसेसरी है। सो आई हैव टू थिंक ऑफ कि अगर बी आएगा तो क्या होगा, अगर बी आएगा तो क्या होगा। सो बी पर अगर मैं सोचूं कि क्या होगा, तो बी पे मुझे क्या करना है? यहीं पे स्टे करना है, क्योंकि 20 से मेरे नंबर ऑफ एज पे फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले नंबर ऑफ एज मेरे इवन थे तो अब भी बी मिलने के बाद भी इवन ही रहेंगे, तो स्टेट वही रहेगी, चेंज नहीं होगा, बट दिस ट्रांजिशन नीड टू बी मेड। सिमिलरली अब चलिए बी ए तो आपका एक्सेप्ट हो गया, सपोज योर वर्ड इज बी ए बी, तो देखिए पहला भी यहीं पे कंज्यूम होगा, अगला ये आपको फाइनल स्टेट पे ले जाएगा। यस, फाइनल स्टेट पे है, बट फाइनल स्टेट से ए पर ट्रांजिशन है, बी पर ट्रांजिशन नहीं, तो लास्ट लेटर बी रीड करते ही इस फाइनल स्टेट में आप क्या करेंगे? क्रैश कर जाएंगे। अब जब क्रैश हो गया, इनपुट क्रैश हो गया, तो स्ट्रिंग क्या होगा? रिजेक्ट होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेट में क्रैश कर रहे हैं। फाइनल स्टेट में एंड करने पर आपका स्ट्रिंग सक्सेसफुल होगा, नॉन फाइनल स्टेट में एंड करने पर आपका फाइनल स्टेट में एंड करने पर आपका स्ट्रिंग सक्सेसफुल होगा, नॉन फाइनल स्टेट में एंड करने पर आपका स्ट्रिंग अनसक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर वो क्रैश करता है किसी भी स्टेट में, चाहे वो फाइनल स्टेट है चाहे वो नॉन फाइनल स्टेट है, तो आपका स्ट्रिंग हर हाल में रिजेक्ट होना है। सो थर्ड लेटर बी रीड करते ही इस फाइनल स्टेट में आप क्या करेंगे? क्रैश कर देंगे, क्योंकि आपका इनपुट पूरा प्रोसेस हुआ ही नहीं, आपका इनपुट पूरा प्रोसेस हो ही नहीं पाया। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ इनपुट क्रैश एंड स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। सो बी ए बी विल बी रिजेक्टेड। तो यानी कि इस स्टेट का जो ट्रांजिशन है बी पर, वो भी मेरे लिए बनाना नेसेसरी है। अगेन अगर मैं वो ट्रांजिशन को डिजाइन करूं तो क्या होगा? ऑन बी आई विल बी लूपिंग टू दिस स्टेट सेल्फ। अगेन क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है ए पे चेंज होनी है मेरी स्टेट, बी पर मेरी स्टेट चेंज नहीं होनी, क्योंकि बी से नंबर ऑफ एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा एनएफए बन गया। जितने नेसेसरी ट्रांजिशन थे मैंने बना लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज एनएफए एज वेल एज
DFA. Also it is DFA. क्यों? क्योंकि आपने इसके सारे ट्रांजिशन डिजाइन कर दिए। कहीं पे भी आप देखिए, आपने हर स्टेट से एक ही ट्रांजिशन बनाया है हर इनपुट सिंबल के लिए और सारी स्टेट के ट्रांजिशन पूरे कर दिए। सो इट इज अ DFA ऑल्सो। और जैसे मैंने आपको बताया था NFA क्यों है ये, बिकॉज ईच DFA इज ऑल्सो एन NFA, वाइल वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। हर NFA DFA हो ये जरूरी नहीं है, बट हर DFA NFA होगा ये जरूरी है। सो इन सम ऑफ द केसेस it may be required to draw all the transitions. So there will be certain examples, there will be certain cases in which you cannot draw lesser number of transitions. So means you have to design the DFA only. आप उसका NFA अलग से बना ही सकते, मीन्स उसके कुछ कम ट्रांजिशंस आप बनाए डिजाइन कर ही नहीं सकते। यू हैव टू डिजाइन ऑल द ट्रांजिशंस, सो ऑल द complexities which are required in DFAs, all those complexity you have to go through. So there will be that will be the only possible design for that particular problem. So this is one of the examples. I hope it is clear. In most of the cases, you will be able to draw a simpler design when you are designing an array, okay, in comparison to DFA. But there will be certain cases like this where you cannot draw a simpler design. You have to draw the equivalent complex design, which is the DFA. Okay, so in certain cases it is possible. I hope it is clear. So I wanted to come to this example. So there will be certain examples. So ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर डिजाइन करने चले, आप कहें कि साहब इसमें तो पूरा DFA ही बन गया, इसका NFA बन ही नहीं रहा है। अगर उस केस में आप DFA ही बनाइए, that DFA is the required NFA. Is it clear है class? Yes sir. There is one more such example, a very simple example. वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि बड़ा trivial example था। Example 7 यहीं पे लिख लेता हूँ, चलिए अलग पेज पर नहीं जाते। Accept all words over A, B. इसका NFA बनाइए। DFA तो इसका सिंपल है, माइनस प्लस एंड AB। अब इसका NFA बनाइए। क्या NFA बनाएंगे? सेम बनेगा या कुछ कम कर सकते हैं इसमें से? क्लास सेम ही बनेगा सर। सेम ही बनेगा क्योंकि इसमें सारे के सारे ट्रांजिशंस नेसेसरी। देखिए, नल को एक्सेप्ट कराने के लिए स्टार्ट स्टेट का फाइनल स्टेट होना जरूरी है। अगर आपका वर्ड ए से शुरू होता है तो ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, सिंगल लेटर ए शुड गेट एक्सेप्टेड। तो उसके लिए आपको ए का ट्रांजिशन बनाना पड़ेगा और इसी स्टेट पे वापस आना पड़ेगा। सो ऑल द एज विल गेट एक्सेप्टेड। सिमिलरली अगर बी से आपका शुरू हो रहा है या बी आ रहा है कहीं पे, तो वो वर्ड भी एक्सेप्ट कराना है। तो अगर बी आ रहा है तो उस पर भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी आती है अगर आपने इस पे ट्रांजिशन बी का नहीं बनाया तो क्या हो जाएगा, इनपुट क्रैश हो जाएगा बी पे। ओके, सो बी का ट्रांजिशन भी बनाया, तो बी का ट्रांजिशन भी बनाएंगे, यानी ए और बी दोनों के ट्रांजिशन बने और सेल्फ लूप आ गया, यानी कि कुछ भी कम नहीं बना, सब कुछ बना। और वैसे भी अगर आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन देखें तो इट इज ए प्लस बी एस्ट्रिक। सो ए प्लस बी एस्ट्रिक में आप क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे हमेशा, चाहे NFA हो चाहे DFA हो। सो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स in which nothing lesser than the DFA can be designed. So these are such examples. So this was all I wanted to discuss. Okay, let us take one problem. That problem you have to design yourself. Okay, example 8. All strings containing either double A or double B. All strings containing either double A or double B. डबल लेटर, जस्ट यानी कि डबल, जस्ट इधर डबल ए और डबल बी, इज इट? तो ये आपको डिजाइन करना है, फटाफट डिजाइन करिए
मैं इधर डिजाइन बना रहा हूं, उतनी देर में आपका डिजाइन भी बनना चाहिए। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन, somebody tell me what will be the regular expression? Sir, A plus B asterisk. A plus B asterisk. Double A plus double B. Double A plus double B. फिर A plus B asterisk. A plus B asterisk। फटाफट से इसका NFA बना लीजिए। Is there someone who has made the same? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now I hope that you have learned how to design the necessary transitions in the NFA। क्योंकि अगर इसमें DFA बनाते तो देखिए DFA में क्या होता है, DFA में मैं स्टार्ट करता, वापस वही बनाना तो वैसे ही पड़ता सक्सेस पाथ से, डबल A, so it is a success path, then double B, it is another success path, and once we are at the success, then nobody is going to take this success away from us, so that's why self loop A plus B asterisk। but यहाँ वाला A plus B asterisk नहीं आता, क्योंकि यहाँ A plus B asterisk A और B का सेल्फ लूप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जैसे ही मैं A और B का सेल्फ लूप लगाता हूँ इट बिकम्स NFA। क्यों? क्योंकि A पर एक ट्रांजिशन सेल्फ लूप आ रहा है और एक ट्रांजिशन नेक्स्ट स्टेट पे जा रहा है। ओके, सो ऑन A आई एम कमिंग हियर, ऑन B आई एम कमिंग हियर। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट पे पहुंचाऊँ तो डबल A वाला पाथ फॉलो कर रहा हूँ, अगर B मिलेगा तो डबल B वाला पाथ फॉलो करना शुरू कर दूंगा। सो ऑन B आई विल बी मेकिंग लाइक दिस। सिमिलरली अगर मैं इस स्टेट पर हूँ, यानी कि मुझे एक B मिला है, डबल B वाला पाथ फॉलो कर रहा हूँ, अगर मेरे को A मिलेगा तो मैं जो है डबल A वाले पाथ को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। अगर B मिलेगा तो डबल B मेरे को मिल गया, मैं सक्सेस में पहुंच गया, उसके बाद आगे कुछ भी आता रहे। इस तरह से अगर यहाँ पहुंचने के बाद मुझे सेकंड A मिल गया तो सक्सेस है, और उसके बाद कुछ भी मिलता रहे, तो दिस विल बी द कोरस्पॉन्डिंग DFA। ओके, अगेन यू कैन सी दैट NFA is conforming with the regular expression while DFA is not conforming with the regular expression। okay, so this was all I wanted to discuss in the design of NFAs। so from my side design of NFAs is complete। if you wish to do more practice you can take some examples। पूरा आपके पास DFA के डिज़ाइन का जो है प्रॉब्लम शीट दी हुई है, उनमें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल सिंपल, क्योंकि आपको NFA डिज़ाइन का आइडिया होना चाहिए। बेसिकली आपको डिज़ाइन DFA ही करना है, एग्जामिनेशन में जब भी आएगा DFA का डिज़ाइन करने को ही आएगा। नॉर्मली NFA का डिज़ाइन एग्जामिनेशन में नहीं आता, अगर आएगा भी तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम आती है NFA के डिज़ाइन की। ठीक है, तो आप उसमें से कुछ सिंपल से जो आपको लगते हैं DFAs, उनके NFA के डिज़ाइन आप जो है करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज सफिशिएंट। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ अवर टुडेज लेक्चर, दैट इज, भाई हमने NFA बना लिया। NFA क्यों बनाया? क्योंकि NFA हमारा डिज़ाइन करने में आसान है। ठीक है, बट अल्टीमेटली वी वांट आवर मशीन्स टू बी डिटरमिनिस्टिक। सो अल्टीमेटली तो हमें कैसा डिज़ाइन चाहिए? एक डिटरमिनिस्टिक डिज़ाइन चाहिए, ताकि कुछ भी सरप्राइजिंग ना हो। इज इट? सो यानी कि हम डिज़ाइन किसी भी तरह से करें, चाहे सीधे DFA डिज़ाइन करें, चाहे NFA डिज़ाइन करें, बट अल्टीमेटली हमें उसे DFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो द सेकंड पार्ट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज conversion of NFA to corresponding DFA। So there is a theorem which says for each NFA there is some DFA, there exists
some DFA that accepts exactly the same language यानी कि जो NFA की लैंग्वेज थी वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा, ऐसा DFA बन सकता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच NFA। यानी हर NFA के लिए देयर एग्जिस्ट DFA जो कि सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि हर NFA DFA में कन्वर्टिएबल है, कन्वर्ट हो सकता है। नाउ विल लुक एट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए NFA टू ए DFA। सो वी कम टू द प्रोसेस of converting NFA to DFA. For this, first of all, we assume that M is equal to Q sigma delta Q0 and F is an NFA. Is it? हमने क्या assume किया सबसे पहले कि हमारे पास एक NFA दिया हुआ है। जब NFA दिया हुआ तो हमें क्या दिया होगा, उसमें कौन सी सेट ऑफ स्टेट्स हैं वो दी हुई होंगी, Q, कैपिटल Q। किन इनपुट अल्फाबेट्स पे जो है हमारे वर्ड्स बनेंगे वो इनपुट अल्फाबेट दिया होगा, ट्रांजिशन फंक्शन दिया होगा, यानी कि हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल पे जो है कहाँ किन स्टेट्स पर हम पहुंच सकते हैं वो सारा का सारा ट्रांजिशन फंक्शन हमें दिया होगा। या तो हमें ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में दिया होगा या फिर ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में दिया होगा। सो दिस ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा विल बी विद अस। देन एक स्टार्ट स्टेट होगी NFA में, और NFA में कुछ स्टेट्स होंगी जो कि फाइनल स्टेट्स होंगी, तो वो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। सो F विल बी ए सबसेट ऑफ कैपिटल Q। सो इस तरह से हमें क्या दिया हुआ, एक NFA दिया हुआ। नाउ व्हाट वी वांट, वी wish to construct a DFA. We wish to construct a DFA से M dash. So M हमारा क्या है, NFA है, और M dash हमारा क्या है, DFA। अब DFA है तो इसमें भी कुछ सेट ऑफ स्टेट होगा। सपोज इसका सेट ऑफ स्टेट Q dash है, इसका भी एक सेट ऑफ अल्फाबेट होगा। सेट ऑफ अल्फाबेट सिग्मा ही रहेगा। क्यों सिग्मा ही रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा DFA बनाना है जो सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे। अब अगर सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा तो NFA की लैंग्वेज जिन सिंबल्स से बनी है, DFA की लैंग्वेज भी उन्हीं सिंबल्स से बनेगी। सो दैट्स व्हाई सेट ऑफ सिंबल्स विल नॉट चेंज, सेट ऑफ अल्फाबेट्स विल नॉट चेंज। सो सेट ऑफ अल्फाबेट वही रहेगा। देन डेल्टा डैश इस का कुछ ट्रांजिशन फंक्शन होगा जो हमें बताएगा कि हर स्टेट और हर इनपुट सिंबल के लिए हमें नई कौन सी स्टेट पर पहुंचना है। एंड देन एक स्टार्ट स्टेट होगी इसमें, सपोज मैं उसको Q0 डैश कह लेता हूं, और ऐसे ही एक सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स होगा तो मैंने F डैश के लिए। तो अब अगर मैं M और M डैश को कंपेयर करूं तो दोनों में केवल सिग्मा सेम है, बाकी सब कुछ डिफरेंट है। मींस सेट ऑफ स्टेट भी बदल जाएगा, ट्रांजिशन फंक्शन भी बदल जाएगा, स्टार्ट स्टेट भी बदल जाएगी, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स भी बदल जाएगी। अब अगर हम Q डैश, डेल्टा डैश, Q0 डैश और F डैश को फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ Q, डेल्टा, Q0 एंड F, ओके, तो हमारा क्या होगा, हमारा NFA जो है वो DFA में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट अस डू, कैसे करेंगे। सो वी विश टू कंस्ट्रक्ट दिस DFA वेयर दिस Q डैश will be equal to 2 to the power Q। यानी Q डैश को हम Q की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। Q क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स इन NFA। Q डैश क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स इन DFA। तो DFA का जो सेट ऑफ स्टेट है वो NFA के सेट ऑफ स्टेट से पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा, इट विल बी 2 to the power Q। यानी कि NFA का जो भी सेट ऑफ स्टेट है उसका जो पावर सेट है वो मेरा सेट ऑफ स्टेट्स होगा DFA के लिए। Is it clear? पावर सेट सब लोग समझते हैं क्या है। पावर सेट इज सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ Q।
2 to the power q क्या है? It is the set of all the subsets of q. For example, if my q is suppose q0 q1, दो स्टेट्स हैं इसके अंदर, तो इसके 2 to the power q क्या होगा? It will be consisting of 4 states, और वो it will be consisting of 4 members, और वो 4 members क्या होंगे? सबसेट्स होंगे q के. पहला सबसेट क्या है कि इसमें से हम कुछ भी नहीं लेते, यानी कि 5. दूसरा सबसेट क्या है? ओनली द q0, सिंगलटन सेट. दूसरा सबसेट क्या है? q1, अगेन सिंगलटन सबसेट. उसके बाद नेक्स्ट सबसेट क्या है? q0 और q1 दोनों को हम ले लें. इज इट? सो दीज 4 एलिमेंट्स विल बी देयर इन द 2 to the power q. सो जो मेरा DFA का सेट ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा? पावर सेट ऑफ q. और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सपोज मेरा NFA में कोई एक स्टेट है, सपोज QI, ठीक है. इस स्टेट से ऑन सम इनपुट सिंबल A, सपोज आई कैन रीच टू QJ एंड आई कैन ऑल्सो रीच टू QK ऑन द सेम सिंबल. इट इज पॉसिबल इन NFA ना कि हम सेम सिंबल पे हमारे मल्टीपल स्टेट्स पर पहुंच सकते हैं. तो अब अगर मैं इससे कॉरस्पॉन्डिंग DFA बना रहा हूं, तो अगर मैं DFA बनाऊंगा तो मेरे पास एक QI स्टेट है. ऑन A there will be a single transition, so I will be reaching to a single state. I will be reaching to a single state. लेकिन NFA में ये मेरी दो स्टेट्स हैं, QJ और QK. अब यानी कि मैं अगर इसको DFA में कन्वर्ट कर रहा हूं, सो ये मेरा क्या है? ये मेरा है NFA और ये मेरा है क्या? DFA. अब अगर मैं इसको DFA में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मुझे इन दोनों स्टेट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए. सो मैं यहाँ एक सिंगल स्टेट बनाऊंगा विच विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी स्टेट्स QJ एंड QK. इज इट? तो इस तरह से मैं एक सिंगल स्टेट बना लूंगा इन दोनों स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग. वो कैसे पॉसिबल है? जो है जो मेरा कैपिटल Q है उसके सबसेट से, क्योंकि ये QI, QJ, QK ये सब किसका पार्ट होंगे? ये सब कैपिटल Q का पार्ट होंगे. ठीक है. सो कैपिटल Q का जो एक सबसेट है जिसमें केवल QJ और QK शामिल है. ओके. सो दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ 2 to the power K. सो दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ 2 to the power Q. Is it? So this element will be my single state. So that's why the members of the state in case of DFA will be the power set of Q. Is it okay? Understood or not? सिंपल शब्दों में अगर समझें तो any state in DFA will be of the form say Q1, Q2, Q3 and so on up till QI, where each of these Q1, Q2 and so on up till QI, these all belongs to capital Q. Is it? I think it is understood or not? कि हमारी स्टेट DFA की बनेगी कैसे? ये सबसेट्स ऑफ Q से बनेगी. इज इट? और सबसेट ऑफ Q से क्यों बनेगी वो मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो फर्स्ट पार्ट वी हैव डन. Q से Q डैश कैसे फाइंड करेंगे ये हमको पता चल गया. नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट. Q0 डैश यानी कि मेरी जो DFA की स्टार्ट स्टेट क्या होगी? क्योंकि NFA में मेरी एक सिंगल स्टेट है Q0 और NFA के कॉरस्पॉन्डिंग ही मुझे DFA की स्टार्ट स्टेट बनानी है. सो DFA की स्टार्ट स्टेट भी एक सिंगल स्टेट का कॉम्बिनेशन होगी, दैट विल बी द Q0. यानी कि Q0 जो सिंगल सेट होगा. अब जब देखिए जो कैपिटल Q है इसके सबसेट्स में एक सेट सिंगलटन सेट Q0 भी तो होगा. इज इट? सो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टेट मैंने बनाई है Q0 डैश. तो यानी कि Q0 डैश क्या होगा? इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सिंगल स्टेट दैट इज द Q0. So that will be my start state. Is it? Is it clear? Is it clear? एक तरह से समझिए कि स्टार्ट स्टेट वही रहेगी जो NFA की स्टार्ट स्टेट है, क्योंकि सिंगल स्टार्ट स्टेट है वहां पे. ठीक है. अब आते हैं F पर. F डैश. F डैश क्या होगा?
So f dash will be the set of all subsets of Q containing an element of F। ये कैसे, ये ऐसा समझिए कि मान लीजिए मैं Q0 से स्टार्ट कर रहा हूं, एक स्टार्ट स्टेट NFA में, अभी मैं NFA की बात कर रहा हूं, Q0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने कोई स्ट्रिंग प्रोसेस किया, ठीक है, वो स्ट्रिंग प्रोसेस होते होते अल्टीमेटली मैं मल्टीपल, चूंकि जो है मेरा एक सिंगल स्ट्रिंग NFA में मल्टीपल पाथ्स फॉलो कर सकता है, तो उसने एक पाथ फॉलो किया और कहाँ पहुंचा, एक स्टेट पे पहुंचा QI। इसी तरह से उसने दूसरा पाथ फॉलो किया और कौन सी स्टेट पे पहुंचा, QJ। इसी तरह से एक तीसरा पाथ फॉलो किया, सपोज तीसरी स्टेट पे पहुंचा QK। अब यानी कि अपने स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग पे स्टार्ट स्टेट से मैं कहाँ पहुंचा, इन तीन स्टेट्स पर पहुंचा, QI, QJ एंड QK, ठीक है। अब अगर QI, QJ, QK तीनों ही नॉन फाइनल स्टेट हैं, तो यानी कि NFA में मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर इन तीनों में से सपोज मैं एज्यूम करता हूं मेरी QJ क्या है, ये फाइनल स्टेट है, QJ क्या है, ये फाइनल स्टेट है, QI और QK नॉन फाइनल स्टेट है। सो ऑब्वियस सी बात है कि जो पाथ मुझे QI पे और QK पे ले जा रहे हैं वो पाथ मेरे फेल पाथ है, लेकिन देयर एग्जिस्ट ए पाथ विच इज द सक्सेस पाथ जो कि मुझे QJ पे ले जा रहा है और ये फाइनल स्टेट है, इज इट। तो मेरा स्ट्रिंग क्या होगा, NFA में एक्सेप्ट होगा। अब मेरा स्ट्रिंग NFA में एक्सेप्ट होगा, यानी कि इस स्ट्रिंग को अगर मैं DFA में प्रोसेस करूं, तो मैं Q0 स्टेट से स्टार्ट किया, ठीक है, अल्टीमेटली रास्ते में जो कुछ भी हुआ मैं एक स्टेट पे पहुंचूंगा जो कॉम्बिनेशन होगी QI, QJ और QK का, इज इट। इन तीनों, चूंकि अल्टीमेटली जहां जहां भी मैं पहुंच रहा हूं उसका कॉम्बिनेशन होगा, तो अब चूंकि मैं पहुंचूंगा इस सिंगल स्टेट पे DFA में, तो ये मेरा, लेकिन मेरा ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा ये स्ट्रिंग NFA में भी एक्सेप्ट कर रहा था। NFA में क्यों एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उसमें एक स्टेट फाइनल स्टेट थी, तो ये भी किसका कॉम्बिनेशन, उन्हीं स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। सो अगर मेरे स्टेट के कॉम्बिनेशन में कोई भी एक स्टेट अगर फाइनल स्टेट है NFA की, तो वो पूरी की पूरी स्टेट मेरी DFA की फाइनल स्टेट होगी। सो F डैश विल बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Q। ये क्या है, एक सबसेट ऑफ Q ही तो है, ठीक है। इसमें अगर F यानी कि फाइनल स्टेट्स ऑफ ओरिजिनल NFA, ठीक है, उसका कोई भी एक एलिमेंट अगर इसके अंदर अपीयर कर गया, यानी कि जिन स्टेट के कॉम्बिनेशन से आप DFA की स्टेट बना रहे हैं उनमें कोई भी एक स्टेट भी, अगर एक से ज्यादा भी हो सकती है, कोई कम से कम एक स्टेट अगर फाइनल स्टेट है NFA की, तो वो DFA की भी फाइनल स्टेट बन जाएगा। सो इस तरह से मैं क्या फाइंड करूंगा, F डैश फाइंड करूंगा। सो विद द हेल्प ऑफ F आई कैन फाइंड द F डैश। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Okay. Now we Yes, come sir. on the last part, fourth part, that is the delta dash. अब हमें सब चीज मिल गई, बस केवल DFA का ट्रांजिशन फंक्शन पता लग जाए। तो DFA का ट्रांजिशन फंक्शन कैसे पता लगेगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी फाउंड आउट लाइक डेल्टा डैश Q1, Q2 एंड सो ऑन अप टिल QI कॉमा A। जो ट्रांजिशन फंक्शन DFA का होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। इस फॉर्म का क्यों होगा, आप देखिए पूरा का पूरा क्या है, दिस होल इज अ सिंगल स्टेट ऑफ DFA, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि DFA की स्टेट किस फॉर्म की होगी, इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेट्स फ्रॉम NFA। ओके, सो सपोज मल्टीपल स्टेट्स ऑफ NFA एक सिंगल स्टेट DFA में जो है इनबिल्ट है, तो मैं DFA की क्या ले रहा हूँ, एक सिंगल स्टेट ले रहा हूँ, इसका मुझे A पर ट्रांजिशन लेना है, ठीक है। अब अगर यही सिचुएशन मेरी NFA में होती तो मैं क्या करता, NFA में यानी कि मैं Q1 स्टेट पे भी होता, Q2 स्टेट पे भी होता और QI स्टेट पे भी होता, और सबसे A पर कहाँ जाऊंगा ये देख रहा होता, जिन जिन स्टेट्स पे पहुंचता वो सारी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन लेता। तो यानी कि अब सिंपल मुझे DFA में क्या करना है कि NFA का ट्रांजिशन फंक्शन देखना है डेल्टा। एक्चुअली मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, डेल्टा डैश, जो कि DFA का ट्रांजिशन फंक्शन है, किसकी हेल्प से, डेल्टा की हेल्प से, जो कि NFA का ट्रांजिशन फंक्शन है, डेल्टा ऑफ Q1 कॉमा A।
यानी कि अगर मैं NFA में होता और इस Q1 स्टेट पे होता तो Q1 से A पर मैं कहाँ जाता, वो जिन भी स्टेट्स पे मैं जाता वो सारी स्टेट्स मैं यहाँ लिख लूंगा, यूनियन डेल्टा Q2 कॉमा A। सिमिलरली इसमें अगली स्टेट जो मेरे इस DFA की स्टेट के कॉम्बिनेशन में है वो क्या है, Q2 है, इज इट। तो अगर मैं NFA में Q2 स्टेट पे होता और A अप्लाई कर रहा होता, तो Q2 स्टेट पे होता, A अप्लाई कर रहा होता NFA में डेल्टा, तो कहाँ जाता, वो सारी स्टेट्स में लिखूंगा, यूनियन एंड सो ऑन अप टिल डेल्टा QIA। यानी कि जिन स्टेट से NFA की, जिन स्टेट से मेरी DFA की स्टेट बनी है, उन सारी स्टेट्स का A पर ट्रांजिशन देखूंगा, जिन जिन स्टेट्स पर भी वो जा रहे हैं उन सारी स्टेट्स को मैं यहाँ लिखूंगा और उसका एक सेट बना लूंगा। तो जो भी सेट बनेगा उस सेट के कोरस्पॉन्डिंग मेरी DFA की नई स्टेट होगी, क्योंकि DFA में हमेशा क्या आएगी, सिंगल स्टेट आएगी। तो इस तरह से मैं ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा बना लूंगा, इज इट। सो अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूँ तो इट इज सिंपली द यूनियन ऑफ J इज इक्वल टू 1 to I डेल्टा QJ कॉमा A। आप देखिए Q1 Q2 एंड सो ऑन अप टिल QI तक आया था ना, तो मैंने यहाँ इसको जनरलाइज कर लिया कि J इज इक्वल टू 1 to I मूव करेगा, जब J की वैल्यू 1 होगी तो Q1A देखेगा, जब J की वैल्यू 2 होगी तो Q2A देखेगा, जब J की वैल्यू 3 होगी तो Q3A देखेगा एंड सो ऑन, जब J की वैल्यू I होगी तो QIA देखेगा और उन सबका क्या करेगा, यूनियन करेगा, इज इट। तो उससे जो भी सेट ऑफ स्टेट्स बनेगा मेरा, सपोज कोई सेट ऑफ स्टेट बनता है Q1 Q2 एंड सो ऑन, सपोज QK, इज इट। तो ये जो भी सेट ऑफ स्टेट आएगा, इस पूरे सेट ऑफ स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग आई विल मेक ए सिंगल स्टेट इन DFA, इज इट। तो इस तरह से मुझे ट्रांजिशन फंक्शन पता चलेगा कि DFA की एक स्टेट का A पर ट्रांजिशन करने पे मैं DFA की किस स्टेट पर पहुंच रहा हूं, इज इट। तो इस तरह से मैं ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा को फाइंड आउट कर लूंगा। सो थियोरेटिकली वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग NFA टू द कोरस्पॉन्डिंग DFA। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल की हेल्प से अप्लाई करके देखेंगे कि इसको एक्चुअली कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो कैन आई मूव फर्दर? अप टिल नाउ इज देयर एनी कंफ्यूजन? प्रोसेस तो क्लियर है। अब इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं हम। अगर प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है भी तो अप्लाई करने पर आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस अप्लाई। सो फॉर दिस आई विल फर्स्ट टेक ए प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक NFA लिया। NFA मेरा क्या है, NFA को मैं ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा से फाइंड आउट कर रहा हूं। डेल्टा मेरे को दिया हुआ है कैसे, स्टेट ओब्लिक सिग्मा, ये मेरी ट्रांजिशन टेबल दी हुई है, इज इट। दो सिंबल्स हैं मेरे पास, 0 और 1। ओके, दो ही स्टेट है मेरे पास, Q0 एंड Q1। Q0 मेरी स्टार्ट स्टेट है एज वेल एज मेरी फाइनल स्टेट है। ओके, एंड ऑन 0 आई मूव टू द स्टेट Q0, on 1 I move to the state Q1, Q1 on 0 I move to the state Q1, and Q1 on 1 I move to the state Q0 and Q1 both. So it is an NFA. क्लियर है और नहीं? दिस इज एन NFA। आप केवल ट्रांजिशन टेबल की हेल्प से पूरा NFA दे सकते हैं। ये मैं ट्रांजिशन टेबल क्यों ले रहा हूं, अगर आपको ट्रांजिशन डायग्राम भी दिया है तो भी आपको उस ट्रांजिशन डायग्राम को पहले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि इस प्रोसेस को अप्लाई करने में ट्रांजिशन टेबल से करने में आपको आसानी होगी, ट्रांजिशन डायग्राम में गलती होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, इज इट। सो यानी कि अगर आपको ट्रांजिशन डायग्राम भी दिया हो तो सबसे पहले आपको उसको ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करना, इज इट। अगर ट्रांजिशन टेबल दी हुई है तो कोई बात ही नहीं है। ट्रांजिशन टेबल में इन एंट्रीज से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्रैकेटाइज्ड एंट्री है, तो इसका मतलब ये आपको NFA की ट्रांजिशन टेबल दी हुई है। और वैसे भी अगर मान लीजिए ब्रैकेटाइज एंट्री नहीं भी दी हुई है तो जहां भी आपको अगर मल्टीपल एंट्रीज दिखाई दे या कोई एंट्री मिसिंग दिखाई दे बिल्कुल, या फाइल कहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे, तो वो भी सारे इंडिकेशन है कि ये आपकी किसकी टेबल है, NFA की टेबल है। सो दिस इज माई टेबल फॉर NFA। दिस आई वांट टू कन्वर्ट इनटू द DFA। अगर मैं इस NFA को लिखूं तो दिस NFA इज सिंपली व्हाट, इट इज M
सेट ऑफ स्टेट्स क्या है? इट इज Q0, Q1। कैसे पता चला मुझे? मेरे पास यहाँ दो स्टेट है, Q0 एंड Q1। उसके बाद मेरा सिग्मा क्या है? सिग्मा मुझे यहां से पता चला। अल्फाबेट सिंबल्स क्या है मेरे? 0 1। सो माय अल्फाबेट सिंबल्स आर 0 1। सो Q सिग्मा, इट इज माय Q, इट इज माय सिग्मा। नाउ डेल्टा मुझे इस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो एंट्रीज है मेरी, ये मेरा डेल्टा है। तो टेबल के फॉर्म में मुझे ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा दिया हुआ है। सो डेल्टा Q0 क्या है? Q0 यहाँ पे मुझे Q0 के नाम से दिया हुआ है, तो सेम मैं लिख लेता हूँ। Q0 इज माई स्टार्ट स्टेट, और फाइनल स्टेट मेरी क्या है? It is also the Q0, but it will be written in the form of the set because it is the set of final states. It is the set of final state. So भले अकेली state है, but it is a set. यहाँ start state क्या? It is a single state, while it is a set of state. Is it? So this is my F. This is my Q0. This is my F. Delta Q0 F. Everything in the NFA is being given to me if this table is with me. Now I wish to convert it to the DFA. तो DFA में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं Q डैश फाइंड करूंगा. What will be Q dash? Q dash will be equal to 2 to the power Q. अगर 2 to the power Q है तो Q dash मेरा क्या है? Q dash will be the power set of this. Q0, Q1 दो एलिमेंट है, तो पावर सेट में क्या क्या आएगा? तो 5 आएगा, एक सिंगल Q0 आएगा, एक सिंगल Q1 आएगा, अभी जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड क्या आएगा? Q0, Q1. So corresponding to these elements, these 4 elements, there will be 4 states in DFA. DFA की पहली स्टेट क्या होगी? 5, दूसरी स्टेट क्या होगी? Q0, तीसरी स्टेट क्या होगी? Q1, और चौथी स्टेट क्या होगी? Q0, Q1. Is it? DFA और NFA की स्टेट में हम डिस्टिंग्विश कर सकें, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी DFA की स्टेट्स हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में. सो अगर मैं DFA की स्टेट्स लिखूं तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? नाउ Q डैश I can write something like this. Is it? It is 5. First state. It is Q0. Second state. It is Q1. Third state. It is Q0, Q1. ये मेरी फोर्थ स्टेट. तो इस तरह से मेरी 4 स्टेट Q डैश पता चल गया. Now what will be Q0 dash? Q0 dash. Q0 dash will be equivalent to the start state of NFA. NFA की start state क्या है? Q0. Q0 के corresponding मेरे पास Q dash में कौन सी स्टेट है? ये वाली स्टेट है. So this state will be the start state of DFA. Is it clear? Then F क्या होगा? What will be F? F will be equal to, it will be a set, so that's why I am writing in curly braces. So F will be what? इस Q dash के वो सारे एलिमेंट्स जिनमें कोई भी एक स्टेट जो NFA की फाइनल स्टेट है वो आ रही हो. अब NFA की फाइनल स्टेट कौन सी है? Q0. NFA की फाइनल स्टेट है Q0. आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है NFA की फाइनल स्टेट कौन सी है? Q0. सो इसके जिस भी एलिमेंट में Q0 आ रहा होगा वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी स्टेट क्या होंगी? DFA की फाइनल स्टेट होंगी. अब देखिए Q0 एक तो इसमें ही आ रहा है, सो दिस स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट. उसके बाद Q1 इसमें नहीं आ रहा. अब देखिए Q0, इसमें भी Q0 आ रहा है, इस वाली स्टेट में भी Q0 आ रही है. सो दिस Q0, Q1, दिस स्टेट विल ऑल्सो बी द फाइनल स्टेट. सो DFA में फाइनल स्टेट कितनी होगी? 2 होगी, एक Q0 और एक Q0, Q1. NFA में आपकी केवल एक फाइनल स्टेट थी, Q0. Is it? In general, you will see that if your NFA contains n states, then your DFA will contain 2 to the power n states. यानी कि अगर इसमें 2 स्टेट थी तो इसमें कितनी स्टेट होंगी DFA में? 2 to the power 2 यानी 4 स्टेट्स. अगर यहाँ 3 स्टेट होती तो यहाँ कितनी होंगी? 2 to the power 3 यानी कि 8 स्टेट्स. अगर यहाँ 4 स्टेट होती है NFA में
तो डीएफए में कितनी स्टेट होंगी 2 to the power 4 यानी 16 स्टेट्स। बट ये 2 to the power n स्टेट्स जरूरी नहीं कि सारी सारी स्टेट रीचेबल हो स्टार्ट स्टेट से। सो मैं क्या करूंगा, मैं केवल रीचेबल स्टेट्स फाइंड करूंगा। लेट अस फर्स्ट सी। ओके, सो आई एम राइटिंग दैट एट मोस्ट 2 to the power n स्टेट्स होंगी, इससे कम भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती है, दिस वी विल बी लुकिंग एट। ओके, सो हमने ये चारों चीज फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, केवल डेल्टा डैश फाइंड करना है। डेल्टा डैश यानी कि डीएफए का ट्रांजिशन फंक्शन। सो अगेन इसको भी हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहां मेरा सिंबल होगा 0 1, इधर मेरा स्टेट आएगा नीचे की तरफ, और साइड में क्या आएगा सिग्मा। स्टेट कौन सी होंगी, फाई। तो ये स्टेट है फाई के जो ट्रांजिशंस होंगे वो हमेशा फाई ही होंगे, 0 या 1 पे। ये याद कर लीजिए, अगर कहीं भी फाई आती है स्टेट तो उसके ट्रांजिशन हमेशा क्या होंगे, किसी भी सिंबल पे फाई ही होंगे। दूसरी स्टेट मेरी कौन सी है, Q0। Q0 स्टेट, अब मुझे Q0 स्टेट 0 पे कहाँ जाएगी ये देखना है। तो इसके लिए मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ NFA Q0 on 0 where it is going to Q0 only। ओके, सो Q0 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो स्टेट DFA में है, मैं उस स्टेट को लिख दूंगा, दैट इज Q0। इज इट? उसके बाद मुझे देखना Q0 on 1 where it is going। सो Q0 on 1 इन NFA की टेबल में देख रहा हूं मैं। देखिए कहां देख रहा हूं, NFA की टेबल में। Q0 on 1 is going to Q1। सो Q1 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास DFA में कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट है Q1। सो ये स्टेट में है, यहां लिख दूंगा Q1। इज इट? उसके बाद अगली स्टेट मेरी कौन सी है, Q1। अब Q1 का 0 पे ट्रांजिशन देखना है। सो उसके लिए अगेन मैं NFA में देखूंगा, NFA Q1 on 0 कहाँ आ रहा है, Q1 स्टेट पर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो DFA की स्टेट है Q1, वो मैंने यहाँ लिख दी। इसी तरह से अब मुझे क्या चाहिए, Q1 on 1, ये एंट्री चाहिए, Q1 on 1। So I will look at in NFA Q1 on 1. This entry is this one. So it is the combination of two states Q0 and Q1. So इस combination के corresponding मेरे पास कौन सी state है DFA में, single state Q0 Q1। So I will be writing this state Q0, Q1। So आप देखिए यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ Q0, Q1 in curly brackets, it is the combination of two states. It is telling me that from Q1 on 1 I can reach either to Q0 or to Q1, while here in the table of DFA Q1 is a single state and this Q0 Q1 is also a single state. So from Q1 on 1 I am moving to state Q0 Q1. So it is a single state in DFA. Okay, so now next state is Q0, Q1. Up Q0 Q1 on 0, so it means Q0 on 0 and Q1 on 0 in NFA. So Q0 on 0 and Q1 on 0 in NFA, यानी कि ये कॉलम हो गया इसका यूनियन। Q0 on 0 is Q0, Q1 on 0 is Q1, और इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, Q0 Q1। अब Q0 Q1 के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास DFA में कौन सी स्टेट है, ये वाली स्टेट है Q0 Q1। So I will be writing here in square brackets Q0 Q1। Similarly I want Q0 Q1 on 1, यानी कि Q0 on 1 and Q1 on 1। So देखिए Q0 on 1 is Q1, Q1 on 1 is Q0 Q1, और मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। Q0 on 1 is Q1, इसका यूनियन Q0 Q1। ओके, सो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, वापस Q0 Q1 आ जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट एक ही बार आते हैं जब हम सेट में यूनियन लेते हैं। इज इट? सो इट विल बी Q0 Q1। सो आई विल बी राइटिंग हियर द कोरस्पॉन्डिंग स्टेट Q0, Q1। सो ये मेरा टेबल बन गया। अब मुझे इसमें क्या बताना है, स्टार्ट स्टेट कौन सी होगी, फाइनल स्टेट कौन सी होगी। स्टार्ट स्टेट यहाँ आई गया Q0 डैश, जो मेरी स्टार्ट स्टेट दैट इज द Q0। सो दिस स्टेट इज द स्टार्ट स्टेट। फाइनल स्टेट कौन कौन सी है, एक तो Q0 और एक Q0 Q1, यानी कि ये स्टेट भी मेरी फाइनल स्टेट है और ये स्टेट भी मेरी फाइनल स्टेट है। ये दो स्टेट मेरी क्या हो गई, फाइनल स्टेट हो गई। सो आप देखिए मैंने क्या किया, अपने NFA को सक्सेसफुली DFA में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं M डैश लिखूं तो M डैश इज इक्वल टू
m डैश इज इक्वल टू q डैश, q डैश ऑलरेडी मैंने लिख लिया, ये 4 स्टेट है मेरे पास। देन सिग्मा, सिग्मा है ही मेरे पास जो ओरिजिनल था 0 1। देन डेल्टा डैश, डेल्टा डैश किससे दिया हुआ है? इस ट्रांजिशन टेबल से दिया हुआ है, ये टेबल मेरे पास है, इज इट? देन q0 डैश, q0 डैश मुझे यहाँ दिया हुआ q0 एंड देन f डैश, और f डैश में यहाँ बता चुका हूँ कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द सेट ऑफ दीज टू स्टेट्स, इज इट? सो इस तरह से मुझे क्या मिल गया? NFA से DFA मिल गया। फ्रॉम M I have moved to M डैश। सो NFA को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? कॉरस्पॉन्डिंग DFA में कन्वर्ट कर लिया। इतना प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? अभी जो हमने पीछे प्रोसेस में डिस्कस किया था कि कैसे Q डैश फाइंड करेंगे, कैसे Q0 डैश फाइंड करेंगे, कैसे F डैश फाइंड करेंगे और कैसे डेल्टा फाइंड करेंगे, स्पेशली ये डेल्टा इंपॉर्टेंट है, इज इट? ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लास? यस सर। यस सर। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक पॉइंट और देखते हैं। अब इस DFA की टेबल को जरा ध्यान से देखिए, अब इस DFA की टेबल को जरा ध्यान से देखिए। देखिए मैं स्टार्ट स्टेट से शुरू करूंगा किसी भी स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग, तो यानी Q0 से स्टार्ट होगी, Q0 से 0 पे मैं Q0 पे पहुंचूंगा और 1 से Q1 पर, ठीक है? यानी कि Q0 और Q1 रीचेबल है Q0 से। अब उसके बाद Q1 से क्या रीचेबल है? Q1 से 0 पे Q1 और 1 पे Q0 Q1, यानी कि एक तो इस स्टेट पे पहुंच सकता हूँ Q1 पे और एक Q0 Q1 पे पहुंच सकता हूँ। और अगर मैं Q0 Q1 स्टेट पे हूं तो 0 पर भी उसी स्टेट पर रहूंगा और 1 पर भी उसी स्टेट पर रहूंगा, इज इट? यानी कि मैं कभी भी जो 5 मेरी स्टेट है, ये वाली स्टेट, इस स्टेट पे मैं कभी पहुंच ही नहीं रहा। सो इट इज ए अनरीचेबल स्टेट, इट इज ए अनरीचेबल स्टेट। और अगर मेरी कोई स्टेट अनरीचेबल है, यानी कि वो स्टार्ट स्टेट से कभी मैं वहां पहुंचूंगा ही नहीं, तो वो स्टेट तो मेरी, जो अगर मैं ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में लिखूं तो दैट विल बी ए डिस्कनेक्टेड पोर्शन ऑफ द ग्राफ, इज इट? और उस पर कभी पहुंचूंगा नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है? यूजलेस है। सो उस पर्टिकुलर स्टेट के ट्रांजिशंस को फाइंड आउट करना मेरे लिए नेसेसरी नहीं है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग माई प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, और स्टार्ट स्टेट से जो मेरी रीचेबल स्टेट्स हैं केवल उन्हीं स्टेट्स को फाइंड आउट करूंगा। सो दैट्स वाई जो मैंने आपको यहां कहा था कि NFA अगर मेरा n स्टेट्स को कंटेन कर रहा है तो DFA विल कंटेन एट मोस्ट 2 to the power n स्टेट्स। सो यहां पे आप देखिए ये सारी की सारी 2 to the power n स्टेट्स हैं, मगर एक्चुअल मेरे DFA में केवल ये 3 स्टेट्स होंगी, Q0 Q1 एंड Q0 Q1। ये 5 मेरे DFA का पार्ट नहीं होगा। आप लिखना चाहे लिख लें, ये गलत नहीं है, ठीक है? बट अननेसेसरी इससे आपको क्या है? ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कैलकुलेट और कंप्यूट करने पड़ेंगे। अगर आप इन ट्रांजिशंस को कंप्यूट ना करें, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, तो 4 की जगह 3 रह गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बट सपोज अगर यहाँ आपके n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 5 होती तो 2 to the power n कितना होता? 2 to the power n 32 होता। तो आपको 32 ट्रांजिशंस लिखने होते, और हो सकता है कि इन 32 ट्रांजिशंस में से केवल 8 ट्रांजिशन ही रीचेबल होते, बाकी 24 ट्रांजिशन आपके नॉट रीचेबल होते। तो आप अननेसेसरी उन अनरीचेबल ट्रांजिशंस को यहाँ कंप्यूट करते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट होगा और उसका कोई यूज नहीं है। ओके, सो मुझे क्या करना है? मुझे केवल रीचेबल ट्रांजिशंस फाइंड आउट करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यानी कि अगर मेरे पास NFA में n स्टेट्स हैं तो DFA विल कंटेन एट मोस्ट 2 to the power n स्टेट्स। अब उन 2 to the power n स्टेट्स में से मुझे केवल वही स्टेट्स फाइंड आउट करनी है जो कि रीचेबल हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्लास? यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि उन रीचेबल स्टेट्स को फाइंड आउट कैसे किया जाए, यानी कैसे ये पता लगाएं कि कौन सी स्टेट रीचेबल नहीं। इसका बहुत आसान सा तरीका है। जब मैं ये DFA की टेबल कैलकुलेट कर रहा था तो आप देखिए मैंने जो जितनी भी स्टेट्स थी सब सीक्वेंस में लिख ली थी। पहली स्टेट, फिर दूसरी स्टेट, फिर तीसरी स्टेट, फिर चौथी स्टेट, और फिर उसके बाद उनके ट्रांजिशंस में लिखता चला गया, ठीक है? अब मैं ऐसा ना करके मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रांजिशन फंक्शन को कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? स्टार्ट स्टेट से। कहाँ से शुरू करूंगा? स्टार्ट स्टेट से शुरू करूंगा। तो अगर मैं Q0 से शुरू करता तो Q0 on 0 मुझे पता चलता Q0 पे पहुंचना है, Q0 on 1 मुझे पता चलता Q1 पे पहुंचना है। तो अब ये जो मेरे कॉलम डेवलप हुए, जो इनपुट कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के अंदर जो भी स्टेट्स आई हैं उन स्टेट्स में से कुछ स्टेट रिपीट हुई हैं, जैसे Q0 रिपीट हुई है, ऑलरेडी मेरा इधर लेफ्ट में आ चुका, मगर ये रिपीट हुआ है। ये Q1 एक नई स्टेट है,
ये Q1 एक नई स्टेट है। तो जो भी नई स्टेट्स डेवलप हो रही हैं मेरे इनपुट कॉलम्स के अंदर, उन स्टेट्स को मैं यहाँ इधर की तरफ सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में लिखता चला जाऊंगा, यानी कि वो स्टेट्स हैं जो रीचेबल हैं, तो उनके ट्रांजिशंस मेरे को फाइंड आउट करने हैं। तो यानी Q0 से मैंने Q0 और Q1 फाइंड आउट किया, तो मुझे पता चला Q1 एक नई स्टेट है, तो मैंने यहाँ Q1 लिख लिया। अब मैं Q1 के ट्रांजिशंस देख रहा हूँ, तो 0 पे तो Q1 वही रिपीट हो गई, कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई, लेकिन 1 पे Q0 Q1 आया, सो दिस इज अ न्यू स्टेट विच हैज बीन जनरेटेड। तो मैं इस नई स्टेट को क्या करूंगा, वापस इधर की तरफ यहाँ लिख लूंगा, और उसके बाद इसके ट्रांजिशन देखूंगा। अब इसके ट्रांजिशन देखे, 0 पे भी वही आया, 1 पे भी आया वही आया, यानी कोई भी नई स्टेट जनरेट नहीं हुई। तो जब भी कोई नई स्टेट जनरेट नहीं होगी और मेरे इधर की तरफ सारी की सारी जो भी स्टेट्स लिखी जा चुकी हैं उनके ट्रांजिशन मैंने कंप्लीट कर लिए होंगे, तो मैं अपने प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं केवल स्टार्ट स्टेट से शुरू करके जो स्टार्ट स्टेट से रीचेबल स्टेट्स हैं उन्हीं स्टेट्स के ट्रांजिशंस को कंप्यूट करूंगा। तो जितने जरूरी मेरे ट्रांजिशन होंगे केवल वही ट्रांजिशन मेरे डीएफए के इस टेबल के अंदर आ जाएंगे। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। अगर ये प्रोसेस क्लियर हो तो इसको हम एक और एग्जांपल पर अप्लाई करेंगे। ओके, स्लाइड सेंड हो गई। Just 1 minute, I am adding more slides here. Okay, now we are taking one more example. अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 स्टेट्स ले रहे हैं, Q0। अब मैं आपको ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में बना के दे रहा हूँ। इट इज Q0 on A is having a self loop. This is the start state as well. Now there is another state that is the Q1 state, and from Q0 on A, and there is another state Q2 as well. Okay, पहले state बना लेते हैं। Now Q0 on A is moving to Q1. So आप देखिए Q0 A पर सेल्फ भी रह सकता है और Q1 पर भी जा सकता है, and Q0 on B moves to Q2. Q0 on B moves to Q2. Okay. Now Q1 on A moves to Q0, and on B it is having a self loop. Okay. Now from Q2 on B you can either move to Q0 or you can move to Q1. So it is a perfectly defined DFA. There is one final state that is the Q2. So this Q2 is the final state. Q0 is start state. तो आप देखिए Q0 से A पर 2 ट्रांजिशन है, Q0 and Q1. B पर एक ट्रांजिशन है Q2. Q1 से A पर ट्रांजिशन Q0 जा रहा है, B पर ट्रांजिशन Q1 पे ही है। Q2 से A पर ट्रांजिशन है ही नहीं, B पर ट्रांजिशन या तो Q0 पे जाएगा या Q1 पे जाएगा। So this is an NFA. So this NFA you need to convert to the DFA. So जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसको ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। स्टेट ओब्लिक सिग्मा, मेरे पास 2 सिंबल्स हैं A एंड B, और स्टेट कितनी है Q0, इट इज द स्टार्ट स्टेट, देन Q1 एंड देन Q2, एंड दिस Q2 इज द फाइनल स्टेट आल्सो, इज इट। अब Q0 ऑन A, ये Q0 पे आ रहा है और साथ में Q1 पे आ रहा है, इज इट। तो मैं यहाँ इसको लिख लूंगा Q0 ऑन Q1। अब आप देखिए अगर मुझे Q0 ऑन A देखना होता, बार बार मुझे चेक करना पड़ेगा जब मैं DFA में कन्वर्ट करूंगा, तो Q0 ऑन A पता चला इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो अगर मैं कोई भी एक ट्रांजिशन मिस कर गया तो
मेरा रिजल्ट क्या होगा, गलत हो सकता है। तो इसीलिए इस ट्रांजिशन डायग्राम को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ट्रांजिशन टेबल में, क्योंकि जब भी मैं Q0 ऑन ए या ट्रांजिशन टेबल में देखूंगा, मुझे टेबल देखते ही पता चलेगा Q0 और Q1 दोनों पे पहुंचना है मुझे, इज इट। जबकि यहाँ मुझे देखना पड़ेगा कि इधर ए यहाँ आ रहा है और एक ए यहाँ आ रहा है, ओके। और अगर थोड़ा सा और बड़ा NFA होगा तो ये और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इज इट। तो इसलिए ट्रांजिशन डायग्राम नहीं, हमेशा ट्रांजिशन डायग्राम किस में कन्वर्ट करिए, ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करिए, इज इट। नाउ Q0 on B, Q0 on B is only to Q2, okay, so I'm writing here Q2. Now Q1 on A is going to Q0, so write here Q0. Now Q1 on B is going to Q1 itself. Now Q2 on A कुछ भी नहीं है, it is phi. Phi is the proper entry, ठीक है। Q2 on B या तो Q0 पे जाएगा या Q1 पे जाएगा, so Q0, Q1। ये मेरा NFA का टेबल कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले DFA का टेबल बना लेता हूँ इसके कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो मैंने क्या किया, DFA का टेबल बना। DFA टेबल भी ऐसी बनेगी, स्टेट ओब्लिक सिग्मा, थोड़ा लाइनेटेड ही जा रही है, ऑन A एंड ऑन B, इज इट। नाउ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप देखिए इसकी जो स्टार्ट स्टेट है Q0, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्टार्ट स्टेट Q0 यहाँ पे होगी, जिसको मैं ब्रैकेटाइज करके लिखूंगा DFA में, इज इट। सो दिस विल बी माई स्टार्ट स्टेट। प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब Q0 ऑन A चाहिए मुझे, सो उसके लिए क्या देखूंगा, NFA में देखूंगा Q0 ऑन A कहाँ जा रहा है, Q0 Q1, यानी इन दो स्टेट्स का कॉम्बिनेशन। सो Q0, Q1, इन दो स्टेट्स के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल स्टेट मैंने बनाई, ब्रैकेटाइज करके इसको लिखा, तो ये मेरी सिंगल स्टेट हो गई, इज इट। नाउ Q0 ऑन B आई वांट, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, NFA में देखूंगा Q0 ऑन B, इट इज अ सिंगल स्टेट Q2, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक स्टेट में यहां बना लेता हूं Q2। अब कौन सी नई स्टेट जनरेट हुई, दो नई स्टेट जनरेट हुई, एक A कॉलम में और एक B कॉलम में। ये दोनों स्टेट इधर कहीं नहीं लिखी हुई है मेरे पास, सो मैं इन दोनों स्टेट्स को लिख लेता हूं Q0 Q1 एंड देन Q2। ये हाथ क्या जितनी भी नई स्टेट है आप इधर लिखते चलेंगे तो आपको हमेशा पता रहेगा कि इन स्टेट्स के ट्रांजिशन आपको अभी और फाइंड करने हैं, इज इट। अब Q0 Q1 ऑन A, यानी कि Q0 ऑन A एंड Q1 ऑन A, तो देखना लेकिन मुझे कहाँ है, देखना मुझे NFA में है। Q0 ऑन A इज दिस वन एंड Q1 ऑन A इज दिस वन, और इन दोनों को मुझे क्या करना है, यूनियन। सो Q0 Q1 यूनियन Q0 इज व्हाट, अगेन Q0 Q1 ओनली, इज इट। सो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, Q0 Q1, उसके बाद Q0 Q1 ऑन B, यानी कि Q0 ऑन B एंड Q1 ऑन B। So Q0 on B is Q2, Q1 on B is Q1। इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आएगा, Q2 Q1 या Q1 Q2, ओके। सो कुछ भी लिख लीजिए आप, एक सीक्वेंस बना लीजिए, हमेशा लोअर नंबर को पहले रखिए और बड़े नंबर को बाद में रखिए, तो एक सिस्टम बना रहेगा। अदरवाइज आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं पे आपने Q1 Q2 लिख दिया, कहीं पे Q2 Q1 लिख दिया, जबकि दोनों है एक ही चीज, इज इट। सो हमेशा जो स्मॉल इंडेक्स है उसको पहले रखिए, जो बड़ा इंडेक्स है उसको बाद में रखिए, या जो भी सिस्टम आप बनाना चाहें, जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस के बाद, ठीक है। कोई नई स्टेट जनरेट हुई, यस, देखिए Q0 Q1 तो ऑलरेडी इधर आ चुकी है, बट ये Q1 Q2 मेरी नई स्टेट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ Q1 Q2, क्योंकि इसके ट्रांजिशन मेरे को देखने होंगे। अब देखिए अगली स्टेट है मेरी Q2, सो आई वांट Q2 ऑन A, सो Q2 ऑन A इज 5, ओके। सो 5 के कोरस्पॉन्डिंग मेरी स्टेट क्या होगी, 5, केवल ब्रैकेटाइज करके लिख लो, ठीक है। अब आई वांट Q2 ऑन B, ये एंट्री, सो Q2 ऑन B इज व्हाट, हियर NFA में देखिए Q0 Q1, सो इसके कोरस्पॉन्डिंग में लिख दूंगा यहाँ Q0 Q1। कोई नई एंट्री जनरेट हुई, यस,
ये 5 मेरी नई एंट्री, देखिए Q0 Q1 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है लेफ्ट में, 5 नई एंट्री है, सो 5 को मैंने लिख लिया यहाँ पे, 5 को मैंने लिख लिया। अब Q1 Q2 ऑन A, यानी कि Q1 ऑन A एंड Q2 ऑन A, सो Q1 ऑन A इज दिस वन एंड Q2 ऑन A इज दिस वन, दोनों का यूनियन तो क्या आएगा, केवल Q0, Q0 यूनियन 5 क्या आएगा, Q0। सो कौन सी स्टेट हो गई, इट इज द Q0 स्टेट। Q1 Q2 on B means Q1 on B and Q2 on B, is it? So Q1 on B is this one and Q2 on B is this one. So Q1 union Q0 Q1, दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, Q0 Q1. So it is Q0 Q1. कोई नई स्टेट जनरेट हुई ना, कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई, क्योंकि Q0 ये भी यहाँ लेफ्ट में मौजूद है और Q0 Q1 ये भी यहाँ लेफ्ट में मौजूद है। अब 5 के ट्रांजिशंस मैंने आपको को बताया था हमेशा 5 ही होंगे, 5 के ट्रांजिशन 5 होंगे हमेशा। दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डेड स्टेट और द फेल स्टेट इन DFA, इज इट? सो ये होंगे। अब देखिए चूंकि मेरे पास इधर कोई भी जो है स्टेट नहीं बची है जिसके ट्रांजिशन मुझे लिखने हो, ओके, और इधर कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई, तो यानी कि कोई भी स्टेट नहीं बची, यानी कि ओनली दीज 5 स्टेट्स आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट Q0। आप देखिए यहाँ मेरे पास 3 स्टेट थी, 1 2 एंड 3। यहाँ कितनी स्टेट हो सकती थी मेरे पास, मैक्सिमम 8 स्टेट हो सकती थी। अब उन 8 के मैं ट्रांजिशन लिखता, लेकिन यहाँ जब मैंने Q0 से स्टार्ट किया, उस प्रोसेस को फॉलो किया, तो केवल ये 5 स्टेट थी जो रीचेबल थी। बाकी 3 स्टेट भी होंगी, आप चाहें यहाँ उनके ट्रांजिशन लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन वो स्टेट कभी भी रीचेबल नहीं होंगी, रीच नहीं, आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं कभी, तो उसको लिखना यूजलेस है, इज इट? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं अपने प्रोसेस को। आप देखिए 8 में से केवल 5 आए, 3 प्रोसेसिंग आपकी बच गई। इस तरह से अगर मान लीजिए 4 स्टेट हैं तो टोटल 16 आते, हो सकता है 16 में 5 ही या 6 ही जो है रीचेबल हो, तो आपके बहुत सारा सेविंग हो सकती है। सो दैट्स वाई ये प्रोसेस आप जो है फॉलो करेंगे। अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे फाइनल स्टेट और मार्क करनी है। देखिए मेरी Q2 यहाँ फाइनल स्टेट है, तो जहां जहां इन स्टेट्स में Q2 आ रहा होगा वो सारी स्टेट फाइनल स्टेट होंगी। तो एक तो ये स्टेट मेरी फाइनल स्टेट है क्योंकि इसके अंदर Q2 आ रहा है, एक ये स्टेट मेरी फाइनल स्टेट है क्योंकि इसके अंदर मेरा Q2 आ रहा है, इज इट? सो ये मेरा DFA का टेबल बन गया। अगर DFA का टेबल मेरे पास है, इसका मतलब क्या है, पूरा DFA। क्यों? क्योंकि मेरे पास DFA का सेट ऑफ स्टेट्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट हो गई जो कि मेरे DFA में होंगी। अब मैं M' लिख लेता हूँ यहाँ पे, यानी कि अगर मैं Q' लिखूँ, Q dash will be equal to what? It will be equal to Q0, Q0, Q1, then Q2, comma, Q1, Q2, comma, 5। ये मेरा Q dash हो गया, ठीक है? What is my F dash? My F dash is, similarly you can write Q2 and Q1, Q2, ये आपका F dash हो गया। So Q dash F dash, Q0 dash is simply Q0। ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा आपको यहाँ दिया हुआ ही है इस टेबल में। और क्या बचा, सिग्मा। सिग्मा आपको नोन ही है, सिग्मा आपका AB था तो AB ही रहेगा। तो आपको अपने DFA की जो 5 एलिमेंट्स हैं वो पता चल गए, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0, F। तो इस तरह से आपने अपने NFA को किस में कन्वर्ट कर लिया, DFA में कन्वर्ट कर लिया, इज इट? तो ये आप इस तरह से जो है अपने उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आंसर ट्रांजिशन डायग्राम में लिखना है तो अगेन दिस ट्रांजिशन टेबल यू कैन कन्वर्ट इनटू द ट्रांजिशन डायग्राम। कैसे? Q0 ये क्या है, आपकी स्टार्ट स्टेट है, इसको बना लीजिए। ऑन A इट इज गोइंग टू द स्टेट Q0 Q1, so this is the state Q0 Q1. So Q0 on A is going to Q0 Q1, on B it is going to Q2, so on B suppose it is going to Q2, is it? इसी तरह से फिर Q0 Q1 कहाँ जा रहा है, Q2 कहाँ जा रहा है, इसी तरह से आप इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट इट।
ओके, आई होप यू कैन कंप्लीट इट। तो अगर मुझे ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में अपना आंसर लिखना है, सो दिस ट्रांजिशन टेबल आई कैन कन्वर्ट इनटू द ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, कहने का पर्पस ये है कि जब भी आपको एनएफए से डीएफए कन्वर्जन करना हो, हमेशा या तो आपको प्रॉब्लम ओरिजिनली ट्रांजिशन टेबल के फॉर्म में दी हुई हो तो ठीक है, अगर ट्रांजिशन डायग्राम के फॉर्म में दी हुई है तो सबसे पहले उसको ट्रांजिशन टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, एंड देन फिर फॉलो दिस प्रोसेस एंड कन्वर्ट योर एनएफए टू दी डीएफएस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लास, इट इज क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. ओके, तो मेरी तरफ से प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, अब इस प्रोसेस की केवल प्रैक्टिस होनी है, ठीक है? तो अगर आप लोग बोर ना हुए हों और थके ना हो तो 2-3 एग्जाम्पल छोटे छोटे से जो है ले सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा सा एक बार अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको फिर किसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जैसा आप लोग चाहें। क्लास, डिसीजन नहीं हो रहा, कंटिन्यू करें या छोड़ दें यहीं पे? सर जैसा आप चाहें। ठीक है, तो ठीक है, तो बस 10 मिनट्स और लेंगे और इनको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। छोटे छोटे दो एग्जाम्पल हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, उससे क्या आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, और वैसे तो प्रैक्टिस यहाँ हो गई है बट उससे आपको एक्चुअल में दिखाई देगा, क्योंकि अभी क्या है, मैंने जो एनएफए लिया और उससे जो डीएफए बना, अब ये एनएफए डीएफए में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन क्या लैंग्वेज वही है जो एनएफए की थी? ये तो हमने कहीं टेस्ट किया ही नहीं। यानी मेरा डीएफए सही भी बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। प्रोसेस मैंने आपको एक बताया, आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बट अभी कहीं भी मैंने ये टेस्ट और ये वेरीफाई नहीं किया कि उस प्रोसेस से मेरा डीएफए करेक्ट बन रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो बहुत सिंपल हो और जिसका आंसर मुझे मालूम हो। इज इट? तो मैं सबसे पहले एक एनएफए लेता हूँ, मेरा एनएफए है देयर इज ए स्टार्ट स्टेट, ओके, एंड इस स्टेट को मैं सपोज कह देता हूँ Q0, ठीक है? दिस इज माई एनएफए। एनएफए है कि नहीं है, सबसे पहले बताइए। और एनएफए है तो लैंग्वेज क्या है इस एनएफए की? व्हाट इज द लैंग्वेज? क्लास, नंबर 1, दिस इज no word. yes, no word. So phi is the language. Phi is the language. Phi is the empty set. It is containing no word. Okay. So this is the language. यानी कि it will reject, this NFA will reject everything. This NFA will reject everything. And I assume that my sigma is, यहाँ mention नहीं किया मैंने इसमें, I assume that my sigma is A, B. So it will reject every word which can be formed over A and B, including null. Null will also be rejected. Okay, so it will not accept anything. इसका DFA क्या बनेगा मुझे मालूम है। क्या बनता है इसका DFA? आप देखिए, मैं जल्दी से बनाता हूँ। ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, ठीक है? मेरा A B इस जगह जाएगा, ठीक है? और this will be a fail state. So this will be the DFA corresponding to the same language or not? Just tell me. It will also reject everything. देखिए, null will get rejected क्योंकि start state final state नहीं है, okay? और इसमें कोई भी state final state नहीं है, so everything will be rejected. Everything will be rejected. क्योंकि A B को कहीं ले जाना था, A B को कहीं ले जाना था, ठीक है? ये भी बन सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, कि मैं Sir, इसको, self loop. यस, सेल्फ लूप भी बना सकता था, A, B। ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इज इट? अब लेट अस सी कि हमारे प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, ठीक है? तो अब मैं इसको सबसे पहले, चूंकि ट्रांजिशन डायग्राम है तो ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्टेट ओब्लिक सिग्मा, मेरे पास दो इनपुट हैं A, B। एक स्टेट है Q0 विच इज द स्टार्ट स्टेट, फाइनल स्टेट इसके अंदर कोई भी नहीं है। इज इट? सो Q0 ऑन A इज 5, Q0 ऑन B इज 5। ये तो मेरा एनएफए का टेबल बनेगा, ठीक है? अब डीएफए का टेबल मेरा क्या बनेगा? सो डीएफए का मैं टेबल बना रहा हूं, स्टेट ओब्लिक सिग्मा A, B। जो एनएफए की स्टार्ट स्टेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्टार्ट स्टेट में यहां बनाऊंगा Q0। ये मेरी डीएफए की स्टार्ट स्टेट हो गई। इज इट?
अब Q0 ऑन A आई वांट, सो इसके लिए मुझे कहां देखना पड़ेगा, NFA की टेबल में देखना पड़ेगा. Q0 ऑन A इज 5, सो corresponding state will be 5. Q0 on B I want, so Q0 on B I will look at, it is also 5, so I will make a 5 entry here. Is it okay? अब चूंकि यहाँ एक नई एंट्री आ गई 5 जो कि इधर लेफ्ट में नहीं है, so I will make this entry 5 here. और 5 के ट्रांजिशन हमेशा क्या होंगे, 5 and 5. Is it? So this is my required DFA. अब इस required DFA को मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ. I simply write a Q0 here and a 5 here. It is the same or not? Q0 on A goes to 5. Q0 on B also goes to 5. So Q0 on A or B both, it goes to another state 5. Is it? And 5 के जो ट्रांजिशन है A और B दोनों पे क्या है, it is 5. It is 5. Clear है? So यानी कि मेरा जो DFA इस NFA से, जो मेरा DFA इस NFA से मेरा ये DFA कन्वर्ट होकर के आ रहा है आफ्टर कन्वर्जन. सो ये आ रहा है एंड दिस आई नो दैट दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन. तो यानी कि मेरा जो प्रोसेस है NFA से DFA में कन्वर्ट करने का, इट इज वर्किंग करेक्टली. इज इट और नॉट? इट इज वर्किंग करेक्टली. इट इज क्लियर क्लास? यस सर. इट इज क्लियर. सो पहली चीज हमें ये कॉन्फिडेंस आया कि जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं NFA से DFA में कन्वर्जन का, वो प्रोसेस हमारा सही वर्क कर रहा है. इज इट? अब इसके बाद जो है मैं एक और एग्जांपल लूंगा जो थोड़ा सा इससे जो है बेटर एग्जांपल है, क्योंकि बहुत छोटा सा मैंने लिया था जस्ट टू मेक ए कॉन्फिडेंस. अगला मेरा लैंग्वेज क्या है, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए. सो L इज ऑल वर्ड्स, ये मेरा है एग्जांपल 1. ओके, ऑल वर्ड्स starting with A. With A. इसका NFA मुझे मालूम है, क्या बनाता हूं मैं, स्टार्ट स्टेट Q0 on A I reach to Q1 which is the final state as well. Okay, and all transitions will be here. So this will be the NFA corresponding to the all words starting with A. अभी हमने पीछे डिस्कस किया है. अब इसको मुझे क्या करना है, DFA में कन्वर्ट करना. तो सबसे पहले इसका ट्रांजिशन टेबल बना लूंगा, स्टेट ओब्लिक सिग्मा A और B. Q0 is my start state. Is it? Q0 on A, देखिए कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है. Q0 on A is going to Q1. Q0 on B पता नहीं कहाँ जा रहा, क्योंकि यहाँ कुछ दिया ही नहीं है. So it is 5. It is 5. Now Q1, अगर मेरी Q1 स्टेट है तो on A और B both it is coming to Q1 only. On A और B both it is coming to Q1 only. Is it? So this will be the NFA. अब इस NFA को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, DFA में. तो corresponding DFA की टेबल में लिख लेता हूं, स्टेट ओब्लिक सिग्मा A, B. इसकी स्टार्ट स्टेट Q0 है, इसके corresponding स्टार्ट स्टेट Q0 आ जाएगी. So this will be the start state. अच्छा, इसमें फाइनल स्टेट मैंने मार्क नहीं की, फाइनल स्टेट है Q1. Is it? So Q0 on A. So मुझे उसके लिए NFA में देखना, Q0 on A it is Q1. Okay. So मैंने यहाँ स्टेट लिख दी Q1. Now Q0 on B देखना है मुझे. So Q0 on B in NFA में देखूंगा, ये क्या है 5. So ये मेरी स्टेट क्या होगी, it is 5. कौन सी नई स्टेट जनरेट हुई, दो नई स्टेट जनरेट हुई, एक तो Q1 और एक 5. तो मैं दोनों को लिख लेता हूं, एक Q1 और एक 5. तो दोनों मेरी क्या हुई, नई स्टेट जनरेट हुई. अब Q1 के ट्रांजिशन Q1 ऑन A, तो यहां देखूंगा Q1 ऑन A, इट इज Q1.
ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया Q1. Q1 ऑन B इट इज अगेन Q1. मैंने यहाँ का लिख दिया Q1. कोई नई स्टेट जनरेट हुई ना, दोनों Q1 है और Q1 ऑलरेडी मेरे पास लेफ्ट में है. अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, फाई का ए और बी पे हमेशा क्या होगा, फाई के ट्रांजिशन हमेशा किसी भी डीएफए में क्या होंगे, टू दी सेम स्टेट फाई. इज इट? तो ये मेरा डीएफए कंप्लीट होगा. कोई भी नई स्टेट नहीं है मेरे पास लेफ्ट में जिसके मुझे ट्रांजिशन लिखने हो. अब देखिए यहाँ भी देखिए 2 दूनी 4 स्टेट बन सकती थी डीएफए में, बट केवल 3 ही स्टेट आई. इज इट? सो अब मेरे पास एनएफए डीएफए बन गया. अब इस डीएफए का मैं डायग्राम बना के देख लेता हूँ. Q0, दिस इज द start state. On A, it is going to Q1. Okay, so Q1. और आप देखिए इसमें मेरी कौन सी स्टेट फाइनल स्टेट होगी. देखिए मेरी यहाँ एनएफए की फाइनल स्टेट Q1 है, तो इसमें जहां जहां भी Q1 आ रहा होगा वो मेरी स्टेट फाइनल स्टेट होगी. केवल एक ही स्टेट है जहां Q1 आ रहा है, तो वो मेरी क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी. सो दिस Q1 इज माई फाइनल स्टेट एज वेल. सो ऑन A I am moving to Q1. Now Q0 on B is moving to phi. Q0 on B is moving to phi. अब Q1 के ट्रांजिशन on A it is Q1, on B also it is Q1. So on A it is Q1, on B also it is Q1. Phi क्या है on A and B both phi. A and B both phi. Is it? So ये आपका क्या बन गया, DFA बन गया. आप देखिए स्टार्टिंग विद ए, ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए के लिए यही डीएफए बनाया था ना आपने, याद करिए पुराना सेम डीएफए था ना. इज इट? सो बाय दिस प्रोसेस इज वर्किंग करेक्टली, बिल्कुल सही वर्क कर. इज इट? इज इट और नॉट क्लास? यस सर. ओके, अब बस केवल एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी से. यहां तो देखिए मुझे जो एक्सपेक्टेड आंसर था एग्जैक्टली वही आया. ठीक है, यही आंसर एक्सपेक्टेड था, बट यहां पर मेरी एक्सपेक्टेशन इस आंसर की थी. इज इट? पहले वाले एग्जांपल में इस आंसर की एक्सपेक्टेशन थी, मगर मेरा आंसर क्या आया, ये आया. इज इट? तो अब अगर ये आंसर आया तो यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस एनएफए को डीएफए में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, हालांकि ये आंसर भी मेरा करेक्ट है, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन मेरी इस आंसर की थी. इन दोनों आंसर्स में डिफरेंस क्या है, इन दोनों आंसर्स में डिफरेंस क्या है? इसमें 2 स्टेट हैं, इसमें एक सिंगल स्टेट है. एक तरह से क्या है, आपका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है, ऑप्टिमाइज्ड आंसर है. ये क्या है, आंसर तो ठीक है बट ऑप्टिमाइज नहीं है, इसे फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट इफ वी कन्वर्ट एनएफए टू डीएफए, द रिजल्टिंग डीएफए मे नॉट बी द ऑप्टिमाइज्ड, सो वी नीड टू ऑप्टिमाइज इट. सो आफ्टर conversion, the DFA may not be minimized one. So what we want, we wish to minimize it. Okay. So अब हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले DFAs डिस्कस किए, फिर हमने NFAs डिस्कस किए, उनका डिज़ाइन डिस्कस किया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस की. एनएफए का डिज़ाइन आसान है, डीएफए का मुकाबले, ऑल सच पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड. देन वी हैव सीन अल्टीमेटली चूंकि हमें अपने जो डिज़ाइन है वो डिटर्मिनिस्टिक चाहिए, तो एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करेंगे. एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करने का एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस हमारे पास है जिसको हमने फॉलो किया, एंड वी आर लुकिंग एट कि एनएफए से हमारा डीएफए बिल्कुल सही कन्वर्ट हो रहा है. लेकिन एनएफए से जो डीएफए कन्वर्ट हो रहा है, इसमें फर्दर पॉसिबिलिटी है इस डिज़ाइन को और ऑप्टिमाइज करने की, इस डिज़ाइन को और बेटर बनाने की. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल वर्क ऑन दी ऑप्टिमाइजेशन, कि जहां भी ऑप्टिमाइजेशन की पॉसिबिलिटी है वहां हम किस तरह से, किस मेथड से ऑप्टिमाइज करेंगे. ओके, सो दैट विल बी द मिनिमाइजेशन ऑफ ए डीएफए. सो हम क्या करेंगे, एनएफए को डिज़ाइन करेंगे, आसानी से डिज़ाइन कर लेंगे, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो डीएफए कन्वर्ट होकर के आया है ये मिनिमाइज्ड है कि नहीं है, क्योंकि मिनिमाइज्ड डीएफए हमारा होगा तो हमारा डिज़ाइन बेटर होगा.
So this will be all which I wanted to discuss in today's lecture. So I hope we can stop at this point. If you have any doubt, you can ask, otherwise I will close it. Class, is there any doubt? No, sir. Okay. So from my side, I have covered. Now from tomorrow onwards, there will be regular lectures. So कल हमारा lecture कितने बजे है? Morning 10 पे है शायद. Is it? Friday. कल Yes, Friday है sir. ना? Okay. Morning 10 पर है. So ये अब हमारे regular lecture start हो गए हैं. आपको college की तरफ से आपके group पे आपके OCs वगैरह ने notice डाल भी दिया होगा कि अब online classes start हो गई हैं. So everybody should attend it. अगर किसी को अटेंड करने में कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसको अपने कंसर्न काउंसलर या ओसी को जो है बता देना चाहिए, ठीक है. अदरवाइज अब आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो सभी लोग नॉर्मल क्लासेस अपनी अटेंड करना शुरू करें, क्योंकि अब कल से जो क्लासेस होंगी उनकी अटेंडेंस मार्क होंगी, ठीक है. अभी तक की अटेंडेंस मैंने मार्क नहीं की है कहीं भी, क्योंकि ये क्लासेस हम अनऑफिशियली ले रहे थे, केवल प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए ले रहे थे, तो केवल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स इसमें आ रहे थे. अब कल से जो क्लासेस होंगी वो सभी के लिए होंगी. ओके, सो थैंक यू ऑल. सर इसी टॉपिक के आगे से कराएंगे ना कल से? प्रवीण सर ने कहाँ तक करा दिया? तो उन्होंने मिनिमाइजेशन कंप्लीट करा दिया क्या? सर शायद उन्होंने स्टार्ट तो करा था. स्टार्ट करा था, मिनिमाइजेशन पे ही थे ऐसा मुझे मालूम है. अब वो कंप्लीट किया था या नहीं किया था ये मुझे नहीं मालूम. ओके, एनीवे हम इसी के आगे स्टार्ट करेंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट हमें मिनिमाइजेशन पर ही जाना है. तो आई विल टीच यू मिनिमाइजेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है. एनीथिंग एल्स? ओके सर. थैंक यू ऑल. नो सर. थैंक यू सर. Okay, so now you can leave the class.